Hey guys, how are you? I hope all of you are doing really good. So, finally, the most awaited announcement is here from the Institute of Chartered Accountants of India, which everyone had been waiting for. The new course, May 2024. And today, this announcement has come, that is 24th of August 2023, regarding the exemptions for appearing in the paper or the group of chartered accountancy examination under the new scheme of education and training with effect from May 2024. सो बहुत सारी चर्चा थी इस चीज को लेकर। और सर अपने चैनल पे तो बहुत सारा बवाल भी हुआ था इस चीज को लेकर, शायद आप लोगों को पता ही होगा, है ना कि नहीं। एंड देयर वाज दैट फेमस हैक दैट एवरीवन हैड बीन टॉकिंग अबाउट, एंड उसके ऊपर सर बहुत बवाल हुआ था, है कि नहीं। और शायद अभी भी हो जाए, क्या पता सर। चलो कोई बात नहीं सर, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर द बवाल, ठीक है ना। लाइफ में थोड़ा सा बवाल स्पाइस बना रहना चाहिए। बट ये है कि सर जो मैंने वहां पर ओपिनियन रखा था उस हैक को लेकर, इंस्टीट्यूट ने कहा कि सर जी नहीं, हम तो हैक के साथ जाएंगे। तो अच्छी बात है, मैंने तब भी कहा था, वो बवाल तो ऐसे ही हो गया सर। मैंने तब भी कहा था कि सर जी वो एक ओपिनियन है मेरा, ठीक है ना। मैं उस हैक की फेवर में पर्सनली नहीं था, लेकिन इंस्टीट्यूट मान रहा है कि वो हैक काम कर जाएगा जी। इस नोटिफिकेशन, अब नोटिफिकेशन के थ्रू है, राइट। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, आई विल जस्ट कम टू द पॉइंट स्ट्रेट अवे दैट व्हाट इट इज गोइंग टू बी। दिस इज द फाइनल पेपर्स exemption, that how it is going to work. And I'll talk about the intermediate. I'll straight away come to the intermediate exemption pattern, that how the intermediate exemptions will work. First, if you have exemption in accounting, then you will be getting the exemption in two papers under the existing scheme. If you are accounting and advanced accounting, if you have exemption, then your paper number 1 is exempt. Advanced accounting, exempt sir. Corporate laws, paper number 2, exempt sir. If cost and management accounting, paper number 3, you have exemption, then you have exemption in paper number 4, that is group 2, under the new scheme. Cost and management accounting, you will have the exemption. Now, taxation, you have paper number 4, here you will have paper number 3, exempt. Auditing and assurance, paper number 6, paper number 5, exempt, right? The main part here now is regarding this part. The whole game was regarding this part, sir. Paper number 7 and paper number 8, because here we are going to have this EIS and economics of finance being removed. Now what will happen, sir, if we have exemption in one of the subjects, right, and we do not have exemption in the other subject? So they say कि अगर पेपर 7 में एग्जाम्शन है तब भी आपका पेपर 6 एग्जाम्ट है, और अगर पेपर 8 में एग्जाम्शन है तब भी आपका पेपर 6 एग्जाम्ट है सर। बात ही खत्म हो गई सर जी, ठीक है ना। तो अगर वो जो हैक की बात हो रही थी कि सर अगर ऑडिट में एग्जाम्शन आ गया और इन दोनों में से किसी एक में एग्जाम्शन आ गया तो आपका ग्रुप और पेपर ग्रुप 1 क्लियर है, तो ग्रुप 1 क्लियर है, ग्रुप 2 में ऑडिट में, और पेपर 7 और 8 में से किसी एक में एग्जाम्शन आ गया तो आपका ऑटोमेटिकली न्यू स्कीम में ग्रुप 2 क्लियर हो जाएगा जी। ऐसा ही लग रहा है इस नोटिफिकेशन से, क्योंकि उन्होंने कहा पेपर 7 से भी पेपर 6 एग्जाम्ट है और पेपर 8 से भी पेपर 6 जो है आपका एग्जाम्ट हो जाएगा। लेकिन अब इसके पीछे की कहानी सुनना सर, इसके पीछे का जो लॉजिक समझ में आ रहा है इंस्टीट्यूट की तरफ से, कि जो पॉपुलेशन, the number of students who will be in this category getting the exemption in auditing and paper number 7 or 8 will be very less, and that means get ready for some challenge in the group 2 in November 2023 exams, right? The institute will not leave you so easily. institute इतनी आसानी से आपको छोड़ने वाला नहीं है भैया, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट गए कि हर बच्चा ऐसे ही करेगा, सर ऑडिटिंग में एग्जाम्शन, पेपर 7 8 में एग्जाम्शन, हम तो ग्रुप 2 क्लियर कर गए, बहुत बढ़िया, है ना। अरे भैया, जहां से तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहां से इंस्टीट्यूट की सोच जो है ना वो शुरू होती है। तो इंस्टीट्यूट को इतने हल्के में मत लो तुम, ठीक है। तो ऐसे पॉपुलेशन जो है ना बहुत ही गिनती चुनती की होगी सर, बहुत कम, वेरी रेयर, वेरी फ्यू, राइट, और माइट नॉट बी देयर। इंस्टीट्यूट विल डेफिनेटली प्ले गेम्स, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, आई एम नॉट मैं यहां पे डराने के लिए नहीं हूं आपको कि आप लोग डर जाओ कि सर ने तो डरा दिया, ऐसा नहीं है। बट येस, at the same time I am warning you, get ready for some good challenge in the in group 2 in November 2023. गेट रेडी। मैं तो अपना पेपर जो FMEFF का पेपर है, मैं उसी तरह से चैलेंज के लिए तैयार कर रहा हूं अपने बच्चों को, जो मेरे लाइव बैच वाले अभी चल रहे हैं, मैं तो उसी तरह से तैयार कर रहा हूं भाई कि बी रेडी फॉर द चैलेंज, राइट। और दूसरी चीज जो बाकी, अगर आपका ग्रुप्स क्लियर है तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने दे रखा है
तो अभी करंटली जो चल रही थी स्कीम हमारे पास, दैट वाज दिस 10th पार्ट। उससे पहले का जो पुरानी आईपीसीसी पीसीई 2 वाला जो चल रहा था उसके रिगार्डिंग है। तो 10th वाला में हमारा चल रहा है कि सर अगर आईपीसीसी में राइट या फिर अभी जो इंटरमीडिएट चल रहा था अगर उसमें आपने ग्रुप 1 क्लियर कर रखा है तो कौन कौन से पेपर आपके क्लियर होंगे, आपको अपीयर कौन कौन से में होना पड़ेगा, ठीक है ना। इन दैट केस अगर ग्रुप 1 क्लियर है तो आपको ग्रुप 2 का पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स देना पड़ेगा और पेपर नंबर 6 एफएम एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आप लोगों को देना पड़ेगा सर, ठीक है जी। आप लोगों को ये पेपर देने पड़ेंगे। अगर आपका ग्रुप 2 पास है तो आपको ग्रुप 1 पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस टैक्सेशन देना पड़ेगा और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग देना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे के सारे ग्रुप 1 में थे, आपने तो ग्रुप 2 क्लियर किया है, ठीक है जी। इसी तरह से ग्रुप 2 बी का अगर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में, ये आईपीसीसी का था, आईपीसीसी का था जो पहले कोर्स हुआ करता था, दिस इज नाउ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो हमारा करंट कोर्स चल रहा है, तो उसके हिसाब से आपको कौन कौन से देने पड़ेंगे सर, ठीक है। तो उसके हिसाब से उन्होंने आप लोगों को सब कुछ स्पेसिफाई कर दिया है। तो एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, नथिंग टू वरी। बेसिकली अब नवंबर 23 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए, ठीक है। जो बच्चे कुछ सोच रहे हैं किसी तरह की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, जो नवंबर 23 वाले स्टूडेंट्स हैं, सुन लो भाई, पहले ध्यान से सुन लो ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं कर रखा। नवंबर 23 वालों का जो पहला टारगेट है, एक मिनट सर, नवंबर 23 वालों का जो फर्स्ट टारगेट है वो क्या होना चाहिए सर, फर्स्ट टारगेट होना चाहिए क्लियर ग्रुप 1, क्लियर ग्रुप 1, ठीक है जी। कि फर्स्ट ग्रुप तो हर हाल में क्लियर कर लो अगर आपने अभी तक नहीं कर रखा है। उससे क्या होगा सर, उससे आपका ग्रुप 2 का पेपर नंबर 4 दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि मेरा ही पेपर है, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा आप लोगों का। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो फोकस इस चीज पे करो कि ग्रुप 1 तो एटलीस्ट कवर आप कर लो, आप क्लियर कर लो, तो उससे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर बचेंगे देने वाले, ठीक है। तो आप अगर मई 24 में जाओगे, मई 24 में आपको सिर्फ 2 पेपर देने होंगे, एक ऑडिट का देना होगा, the one will be audit and another one will be FMSM, right? FMSM also I will be taking up, right? और सेकंड टारगेट, अगर आप सेकंड टारगेट बनाना चाहते हो, सेकंड टारगेट भी आप लोगों को बता देते हैं सर। सेकंड टारगेट आपका ग्रुप 1 तो होना ही चाहिए, प्लस ग्रुप 2 के फिर जो हैक वाला चीज है सर, ग्रुप 2 में आप ऑडिट में एग्जाम्शन की ट्राई कर लो, या फिर पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 8 में एग्जाम्शन की ट्राई कर लो। उसके बाद अगर ये चीज हो जाती है तो मई 24 में आपका इंटरमीडिएट क्लियर है सर, फिर आप सीधा फाइनल में जंप कर जाओगे, राइट। तो मेरे हिसाब से ज्यादा लॉजिकली इसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। इसके लिए ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बट ये जो चीज है ना, इसके चांसेस आर वेरी वेरी लेस फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी भाई इतना नादान नहीं है, इंस्टीट्यूट को पता है, इंस्टीट्यूट तुमसे कहीं ज्यादा आगे है। तो बट ये है कि जो मैंने पहले चीज कही कि वार्न कर रहा हूं कि चैलेंज के लिए तैयार है ना, ग्रुप 2 थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इस बार, ठीक है। सो दैट कि इस ये जो लास्ट वाली कैटेगरी है, ये वाली जो कैटेगरी है, इसमें स्टूडेंट्स ना आए, इंस्टीट्यूट विल मेक श्योर दैट, ठीक है ना, कि मई 24 ऐसे ही सर बिना एक पेपर दिए क्लियर ना हो जाए, ठीक है जी। तो बस यही चीज आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और उम्मीद है कि अब आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। नवंबर 23 स्टूडेंट्स, हाउ आर योर प्रिपरेशंस गोइंग ऑन, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड कोई भी क्लासेस अगर अभी तक नहीं की हैं तो फटाफट से कर लो यार, जल्दी से कर लो। एंड द May 24 बैचेस, कॉस्ट अकाउंटिंग बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 25th of August, और हम लोगों ने अपना जो प्रोसेस है बहुत सिंप्लीफाई कर दिया सर। अब जीडी वीडी कुछ नहीं, जरूरत है सिंपल लॉग इन करो, प्ले करो, लेक्चर्स को एंजॉय करो, हमारी ऐप पर, लैपटॉप पे भी चला सकते हो, तो बड़ा आसान कर दिया हम लोगों ने प्रोसेस फॉर यू गाइस। ओके, तो सी यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द May 24 guys who are preparing for both the attempt for both the groups or a single group or both the groups as per your preferences. See you guys, all the best till then, stay safe, stay healthy, keep studying, keep sharing. Thank you so much.